Okay, both of you can. We would be recording every day again from now on. No, not every day. Suppose if somebody says I want, so then okay, so let's see the chapter. 2nd September. Chapter is biomolecules. Now look at the chapter's name. Bio means living. So I'm talking about living organisms and molecules which are present within the living organism. So we'll talk about all the molecules, all the minerals, all the components of living organisms, what is present within the living organisms. तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक सेल की. Suppose if I have any cell, माइंड दिस, अगर मैं सेल बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर. उस फुटबॉल के मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी है. उसके अंदर एक जेली भरी हुई है और इस जेली के अंदर, दिस इज कॉल्ड द सेल्यूलर पूल. इस जेली के अंदर बिखरे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. So I'll be talking about what are the different types of minerals in the body, in the cell. If it is there in the cell, so obviously it is there in the body also. तो inorganic कौन से हैं, organic कौन से? We'll be talking more about the organic compounds because that is what will be the biomolecules. तो थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग में inorganic molecules के बारे में बताऊंगी, then we'll shift to the organic. ये जो दो वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ, एक कहती हूँ inorganic molecules और एक कहूंगी मैं organic. तो are you able to distinguish the two words? Suppose I say inorganic molecules. तो what do you mean by that? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है उससे? If I say it is inorganic. Those which not include carbon as its component. These are derived from non-living sources, minerals, ores, etc. Organic sources are associated with living creatures. Yes, both of you are correct. तो inorganic का मतलब होगा कि they are not made up of carbon and hydrogen. So any molecule which is made up of carbon and hydrogen and anything else may be there. So if these two components are there, are basic components. Everything else is others. Others are all inorganic. तो ऑर्गेनिक किसे कहेंगे हम? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम्स आ जाएं, इनसे बने हुए मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक. बाकी सभी केमिस्ट्री में एवरीथिंग एल्स इज इनऑर्गेनिक. तो ये वो केमिस्ट्री वाले ही दो वर्ड्स हम यूज करेंगे. नाउ अब हम बात करेंगे सेल्यूलर पूल की. सेल्यूलर पूल मींस एक सेल के अंदर, एक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो व्हाट इज सेल्यूलर पूल? सेल cytoplasm with various molecules inside and in cell membrane and cell wall. So whatever is there that is making this cell is these molecules, they are known as the biomolecules. Now suppose अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, तो सेल्स भी फर्दर इट इज मेड अप ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ओनली. तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स. तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड एंड फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जनरली ये सारे कंपोनेंट जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक भी बोलते हैं. तो इन द फ्यूचर ऑल्सो इफ समबडी सेज कि ऑर्गेनिक, तो दैट मीन्स इट इज मेड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
और अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूँ तो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. So let us see what are the inorganic components. Inorganic, ये थोड़ा सा हमें पढ़ना है inorganic भी, फिर later on we'll shift to organic only. Inorganic components. ये क्या क्या होंगे? They could be the calcium, phosphorus, किसी भी अल्फाबेट का अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना. Sodium, magnesium, chloride ions, sulfur, iron, copper, molybdenum, manganese, zinc, fluoride, iodine, selenium, these kind of molecules, boron, they're all the inorganic components of our body. Potassium रह गया, potassium ions, potassium. In fact, everything is in the ion form. हमारी बॉडी में सब आयन के फॉर्म में होते हैं. Nothing is there in the solid form या gaseous form. So ये है हमारी बॉडी के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. लेट अस सी कि ये कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में और इनका क्या रोल है. और अगर आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिलते हैं तो वो भी आई कैन टेल यू दैट आल्सो. लेट्स सी. सो लेट्स शिफ्ट. Please wait, ma'am. Done? Yes, ma'am. Okay. So let us start with the first one, that is sulfur. कहाँ मिलता है सल्फर हमारी बॉडी में और इसका क्या रोल होता है? तो सल्फर बेसिकली इज फाउंड इन ऑल द प्रोटीन्स. It's a component of all proteins and it's found in amino acids. एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं. तो ये दो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स लाइक सिस्टीन एंड मिथियोनिन. ये हम आगे पढ़ेंगे कितने डिफरेंट टाइप की एमिनो एसिड्स होती हैं या क्या होता है एमिनो एसिड, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. मिथियोनिन. तो ये दो टाइप के एमिनो एसिड्स जो हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ सल्फर. दे हैव डाइसल्फाइड बॉन्डिंग एंड इनमें ये दो एमिनो एसिड ऑलमोस्ट हर प्रोटीन में होते ही होते हैं. And what's the meaning of cysteine? ये एक एमिनो एसिड है. It's a kind of amino acid. Amino acid are the components of protein. तो जैसे एक स्टार्च कैसे बना होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के बनता है, तो ऐसे ही बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके 10 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन. तो उसमें से दो एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसके अंदर सल्फर की जरूरत पड़ती है, जैसे सिस्टीन नाम है एक का और एक का मिथियोनिन. और कहाँ मिलता है और कहाँ चाहिए सल्फर? ऑल द एंटीबॉडीज. आपकी बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज बनती हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, उन सभी में सल्फर की जरूरत होती है. माइंड दिस. या जितने भी टर्शियरी प्रोटीन्स बनते हैं, टर्शियरी प्रोटीन्स. तो टर्शियरी प्रोटीन्स क्या होते हैं? जब बहुत सारी चेन्स एमिनो एसिड की एक प्रोटीन बनाए तो वी कॉल इट एज टर्शियरी प्रोटीन. ये मैं लिखवाऊंगी आगे चल के सभी. तो बस अभी ये ध्यान रखो कि सल्फर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है. देन वी हैव कहाँ किस चीज में मिलता है ये भी लिखूं क्या मैं? और यू नो दिस सल्फर क्या? लिख दो मैम. ओहो. सल्फर कहाँ मिलेगा आपको? सल्फर आपको मिलेगा इन ऑल वेजिटेबल्स फाउंड
below the soil, like radish, then it will be there in all अपने family भी नहीं पढ़ी अभी, then this turnip, गोभी जितनी होती हैं उसको हम कहेंगे कॉलीफ्लावर, कैबेज, इस टाइप के उसमें मस्टर्ड। एक पंजेंट सी स्मेल जहां आती है, ऐसे वाले कंपोनेंट्स में आपको मिलेगा सल्फर, या फिर मिट्टी के नीचे से निकलने वाली चीजों में मिलता है सल्फर। सो हरी सब्जियां जनरली दे कंटेन मेनी ऑफ द थिंग्स, ग्रीन vegetables, they contain almost all the minerals. Okay, सेकेंड देखें। सेकेंड है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ चाहिए? बोन्स, टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, Muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन, देन कैल्शियम और भी कहीं पाया जाता है, जैसे अपने शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, हाँ वहां भी चाहिए। सेल्यूलर फंक्शंस, सेल्यूलर परमिएबिलिटी फंक्शंस, permeability functions, also found in animals में, जैसे बाकी एनिमल्स में, also found in calcium carbonate shell of animals like snails, then leaf के अंदर पाया जाता है, leaves, हर पत्ते के अंदर there is a cell wall and cell wall is made up of calcium peptide. Leaves have calcium peptide. सभी हरी पत्तियों में, हर प्लांट प्रोडक्ट में, every plant product has calcium peptide. All plant. Ma'am, what is pectate? पैक्टीन ये एक ग्लू है प्लांट्स का। जैसे दो सेल के कौन जोड़ के रखता है, दो सेल को, सपोज प्लांट टिश्यू बनता है तो दैट इज द ग्लू कॉल्ड पेक्टीन। तो वो कैल्शियम पैक्टेट होता है बेसिकली। ऑल प्लांट, मैं अभी ड्राइंग बना के दिखाती हूँ कैसा होगा। ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स हैव कैल्शियम पैक्टेट। अगर आपको कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाए तो क्या खाओगे? हरी पत्तियां, फ्रूट्स, सैलेड। क्या करता है ये? इट इज द component of middle lamella of cell wall। जैसे कि सपोज ये एक सेल है और ये एक सेल है और ये एक सेल है प्लांट का। सो दिस मेम्ब्रेन, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेप्टाइड। प्लांट का सेल कहाँ होता है? प्लांट का सेल इसके अंदर होता है, यहाँ पे। तो ये जो बाहर वाली सेल वॉल है, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेप्टाइड, and this is the glue that keeps the two cell together. This is what makes a plant tissue possible. So there we have maximum calcium. और अगर आपको कभी भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, you can go for this. Then you can have it in milk also, meat. Shall I shift to the next page? Please wait. Yes, ma'am.
Done? Yes, ma'am. So also found in milk, milk products. मिल्क में जो आपको सफेद रंग दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम ओनली. मीट, नेक्स्ट है हमारा मिनरल, थर्ड इज फॉस्फोरस. पी जिसे हम कहेंगे. तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन्स, present in bones, teeth. ATP synthesis. 10th book had a column something plus organic, inorganic phosphate. I This don't is remember ATP. clearly. ATP में जो T और P है वो ट्राइफॉस्फेट ही है. तो 3 बार फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है एडिनोसाइन के साथ एंड दैट बिकम्स ATP. तो During ATP क्या है? lipid. हाँ, तो जब ATP बनता है तो इसमें फॉस्फोरस जुड़ता है. और कहाँ होता है? आपकी सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? बायफॉस्फोलिपिड की. तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बायफॉस्फोलिपिड. बायफॉस्फो मीन्स 2 बार, 2 लेयर में फॉस्फोलिपिड लेयर. तो यहाँ पे होगा फॉस्फोरस. कहाँ मिलेगा आपको? Phosphorus is again found in green leafy vegetables, all vegetables. देखो जहां भी आप सेल खा रहे हो, सेल मीन्स आपने प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट खाया तो ऑब्वियसली यू आर ईटिंग द सेल, और सेल खाया तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी. इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे याद रख लेना आपको. तो ऑल वेजिटेबल्स, मीट, जितना भी कुछ भी खा रहे हो आप, सब में फॉस्फोरस तो है ही है. मीट etc. These are the basic things. All cells basically, all cells have cell membrane, and that is what is our food. बस वहीं से हमें फॉस्फोरस मिल जाता है. तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी बॉडी में जनरली होनी नहीं चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट यू आर ईटिंग समथिंग. सो वट एवर यू आर ईटिंग दैट विल बी हैविंग फॉस्फोरस, अगर वो किसी भी प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से बना है. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. Now magnesium is again a component of bones. Bones and teeth. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट के बने होते हैं हमारी बोन्स और दांत. देन यू नो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर एक मैग्नीशियम होता है. क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ये कैसे बना होता है ये भी हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे आगे. ये देखो ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर, बीच में एक मैग्नीशियम होता है ऐसे. दिस द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर इज made up of. So it has one magnesium molecule in between. So component of bones and teeth, chlorophyll structure. That's the most important one. And it is also present in the mitochondria. It's a component of various enzymes. In the living cells. Especially in the mitochondria. तो कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, यू नो हमारी बॉडी के 70% एंजाइम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं. और उसमें से मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एटीपी एज वेल एज प्रोटीन्स. तो प्रोटीन बनाने के लिए भी मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल में होनी चाहिए. ओके, तो कहाँ मिलेगा मैग्नीशियम? सपोज आई वांट टू हैव मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी है तो कहाँ मिलेगा? ऑल लीफी वेजिटेबल्स, salads, meat,
all food items, especially this seeds, dry fruits, apple, and other fruits. मिनरल्स जनरली ऐसी चीज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो स्टोरेज ऑर्गन होता है, जैसे कि आलू है, आलू के अंदर होगा, सीड्स हैं वहां पे होगा, पत्तों में अगर क्लोरोफिल है तो वहां होगा. इट इज दिस वे. So most of the green leafy vegetables will have almost all the minerals. Okay, next is iron. Next page पे जाऊं. Yes, ma'am. So next mineral we have is the iron. Okay, ये बताओ आप मुझे कहाँ मिलेगा आयरन बॉडी में? Hemoglobin. Hemoglobin. It's a part of hemoglobin, Hb. इसमें जो heme है, that heme is basically heme part. That is iron. Globin is a protein. तो hemoglobin में एक आयरन और प्रोटीन मिलके बनाते हैं हीमोग्लोबिन. तो इनवेरिएबली अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यू हैव द एनीमिया. डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया. आपका ब्लड नहीं बनेगा तो बहुत डिस्टॉर्टेड आपके आरबीसीज बनते हैं. सो आयरन इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ hemoglobin. Then it is also found in plants, leaves. Also found in green leaves. And spinach is said to be a very good source of iron. All green leaves are rich source leaves. It helps in forming साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस. तो लीव्स में ये क्या करता है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस बनाता है. ये हम आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में, विच इज पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हियर फोटोसिंथेसिस occurs. तो साइटो मीन्स सेल, क्रोमा मीन्स कलर. तो ये कुछ कलर्ड कंपोनेंट्स हैं क्लोरोफिल के अंदर जो कि मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और ये आपको हरे पत्ते में मिलेंगे. सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में तो सब कुछ ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स मिल जाते हैं. तो हरी सब्जियां खाना तो अब जरूरी हो गया आपके लिए. या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट है, ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स दे हैव आयरन, मोस्ट ऑफ देम. जैसे एप्पल को आपने काटा और वो थोड़ा सा आप देखते हो थोड़ी देर के बाद वो रेडिश हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड्स. उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. तो इनफैक्ट एप्पल एप्पल इज अ फ्रूट जिसको हम कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स. सो क्योंकि मे बी वो पहाड़ों पे पाया जाता है और वो वहां से बहुत सारे मिनरल्स एक्यूमुलेट कर लेता है, तो हिली एरिया के. तो उसके अंदर ये आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि आपको रेयरली मिलता है किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में भी. तो वो भी आपको एप्पल में मिल जाता है. सो ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स, स्पेशली एप्पल, पोटैटोज, ऐसी वो सभी चीजें जो कि आप देखोगे थोड़ी देर के बाद लाल हो जाती हैं. They contain iron, and that is because of oxidation of that iron. They turn this way.
नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन कहाँ चाहिए? अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था. Thyroxine. Thyroxine हाँ, secretion. this forms thyroxine hormone. और कहाँ पढ़ा था? एक और जगह थी बॉडी में, मैंने बताया था आपको, आईज में समवेयर. Rhodopsin. Rhodopsin and iodopsin pigments in eye. तो यहां भी चाहिए. कहाँ मिलेगा आयोडीन? फाउंड इन iodized salts or sea products. So it is mandatory to have it in your salt. Otherwise, deficiency leads to goiter. Next is the manganese. Now manganese और ये बाकी के जितने भी हम minerals पढ़ेंगे, they basically constitute the part of a enzyme. It constitutes मैम ये गोइट्री क्या होता है? गोइटर कभी आपने देखा है कि कुछ लोगों की नेक जो है बहुत स्वेलअप हो जाती है. तो ये स्वेलअप इसलिए हो गई बिकॉज उसका थायराइड ग्लैंड बहुत बढ़ जाता है. और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर्सन की बॉडी में आयोडीन की कमी के कारण देयर इज हाइपर थायराइडिज्म. थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा. एक्चुअली आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरह से थायरोक्सिन बनाए, बट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल आयोडीन इट इज नॉट एबल टू. तो वो आपके नेक प्रोट्रूड कर जाएगी बाहर और दिखने लगता है कि इस पर्सन को गोइटर हो गया. ये जनरली हिल एरिया के लोगों को हो जाता है क्योंकि उनके पानी में नमक यानी आयोडीन नहीं होता है. हमारे यहाँ नमक में आयोडीन होता है. So it constitutes the part of enzymes in living organisms. नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को. Actually everything is now on net ना. सभी बच्चे, सभी स्कूल की, colleges का, everything. So there's a lot of load on the network. So manganese is a part of enzymes in the living organisms. Actually कोई भी enzyme जो है basically बना तो होता है प्रोटीन से. प्रोटीन होता है उसका basic component, but it may consist of something else also. So it may have a part of some metal ion. और इस मेटल आयन में हो सकता है जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. तो ये एक एंजाइम का पार्ट ऐसे होता है. अगर ये इसका पार्ट ना बना, ये 3D स्ट्रक्चर ना बन पाए तो आपका एंजाइम वर्क नहीं करता. सो दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट कैन बी इन द एंजाइम. तो ये एक एंजाइम क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे. मैं बताती हूँ आपको क्या होते हैं एंजाइम्स. Please shift to the last page. एक मिनट. एंजाइम्स आर biocatalysts. Biocatalyst means they'll be helping in the reaction of formation of product. तो यहाँ पे मुझे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी. Suppose there is a raw material in the body and I need to convert it into a product, तो I'll be needing an enzyme. तो हमारी बॉडी का हर एक रिएक्शन कैटलाइज्ड होता है, इसी को हम एंजाइम बोलते हैं.
Ma'am, enzymes help in speeding up the reaction. Enzyme helps in modulating a reaction. They generally increase the speed, but sometimes they may decrease also. So we say they modulate the reaction rate. Aren't catalysts that reduce the speed of reaction poisons? No. Catalysts generally they speed up. They hardly reduce. They do reduce in some situations, but rarely. Otherwise, they speed up the reaction, and they are must for all metabolic processes. हमारी बॉडी का हर रिएक्शन एक एंजाइम की एक्टिविटी के बिना नहीं हो सकता. सपोज आई टोल्ड यू इन द डाइजेशन चैप्टर ऑल्सो, अगर मेरा आपने खाना खाया है तो वो खाना अगर मुझे उसको डाइजेस्ट करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो इट विल टेक 2-3 years one meal to digest in your stomach. लेकिन with the help of enzymes it is digested within 2 or 3 hours. So this is the speed of, this is the efficiency of enzymes. शिफ्ट करूं? Yes. तो मैंगनीज कहाँ मिलेगा? There is that enzyme page. हाँ? You wrote a point about enzymes. अच्छा, ये वाला रह गया. Yes, ma'am. So कहाँ मिलेगा हमें मैंगनीज? All plant product. Meat, etc. ऑलमोस्ट हर चीज में होता है मैंगनीज, स्पेशली प्लांट प्रोडक्ट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीड्स, सब में होता है, बिकॉज दिस इज अ बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो. मीट में हर एक चीज मिलती है, मीट तो हर एक में आएगा ना? जरूरी नहीं है हर चीज मिलती है, जैसे कि कुछ मिनरल्स नहीं मिलते मीट में. आयरन नहीं मिलेगा, जैसे वी डोंट हैव आयरन, नॉट इन ऑल मीट, बट बिकॉज मीट मीन्स इट इज द मसल्स. किसी भी एनिमल का आप मसल्स खा रहे हो, तो मसल्स में क्या क्या मिल सकता है मुझे? मसल्स में जनरली प्रोटीन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स एंड सम ऑफ द मिनरल्स व्हिच आर नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो मिलेंगे बस, नॉट इन ऑल. And red meat, for example, mutton. Yes, red meat has Does most it of have the. iron? Yes, it has iron. It has myoglobin. Next is molybdenum. MO. अगर आपको कंफ्यूजन था कि ये क्या था, दिस molybdenum. ओके, कहाँ में क्या करता है molybdenum? molybdenum बेसिकली प्लांट्स में जरूरत होती है इसकी. इन प्लांट्स इट हेल्प इन nitrogen fixation, as it is a component of nitrogenase enzyme. बच्चों, ये जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं ये आपका MBBS का बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही जाके, और वहां पे आपको कोई नहीं अलग से पढ़ाएगा. सो वट एवर आई एम टीचिंग हेयर will be considered as the basis of your MBBS first year. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलो आपने MBBS नहीं किया, सिंपल BSc की, तो वहां भी आपको बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक, ये केमिस्ट्री में एक टॉपिक ये जरूर मिलेगा ही मिलेगा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स. आप लोगों को इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री आ जाती है और बस वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो थोड़ा सा ध्यान दो, और ये सेम चैप्टर 12th क्लास में फिर होगा, केमिस्ट्री में होगा. एंड देयर द टीचर विल टेल यू कि आपने 11th में पढ़ लिया होगा बायो में, ऐसे करके बोल देंगे इट इज इजी, अपने आप पढ़ लेना. बट फॉर अ बायो स्टूडेंट दिस चैप्टर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पूरे जब तक आप बायोलॉजी पढ़ोगे फ्यूचर में तब तक ये चैप्टर आपको चाहिए. सो इसीलिए बी वेरी फोकस्ड ऑन क्लास, मिस नहीं करोगे. आई मे नॉट रिकॉर्ड एवरी डे, अगर बच्चों को कभी प्रॉब्लम आ रही है दिस से, तो देन ओनली आई रिकॉर्ड. तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं डेली रिकॉर्डिंग करूंगी. So molybdenum in plants is helping in nitrogen fixation because it's a component of an enzyme called nitrogenase. ये देखो एज वर्ड में जहां भी लगा दूंगी ये एक एंजाइम बन जाता है. तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से क्या होता है,
नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है. फिक्स करना मीन्स इसको अमोनियम आयंस में कन्वर्ट किया जाता है. सो दैट इज वेयर वी नीड द नाइट्रोजिनेज एंजाइम. इसको बोलते हैं फिक्सिंग, फिक्सेशन. हवा से, एयर से नाइट्रोजन लेकर और मिट्टी में डालना, जैसे कि हमारा राइजोबियम करता है, तो वहां पे राइजोबियम को भी इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस. कहाँ मिलेगा फिर मुझे मॉलिबेडनम? legumes, pulses. Soil. This is basically present in microorganisms, plant products, microorganisms. Microorganisms में आप क्या खाते हो? What do you eat? Yeast. Lactobacillus. लैक्टोबैसिलस, दही खाते हो. और दही से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं या जहां भी फर्मेंटेशन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, वो सब चीजें वहां पे आपको ये मिल जाएगा. फ्रूट्स में मिल जाएगा, सीड्स में मिल जाएगा, सभी इनमें मिलेगा. Street food. नेवर. Salmonella. हाँ, वो खाने का मन कर रहा है लगता है आपका. नेक्स्ट इज कॉपर. कॉपर का बेसिकली कॉपर जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स में. इट इज अ component of cytochrome complexes in plants, which is needed for photosynthesis. Needed for photosynthesis and also needed in माइटोकॉन्ड्रिया. ये ऐसे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स मींस बहुत सारे प्रोटीन्स के और मिनरल्स के बने हुए कंपोनेंट्स होते हैं, और ये एटीपी बनाने में मदद करते हैं ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस. तो इन ये हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि एटीपी कैसे बनता है. सिंथेसिस. So wherever ATP will be synthesized, be it photosynthesis or be it respiration, दोनों में ही आपको कुछ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस में दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं मेटल के, आयरन और कॉपर. तो दोनों ही आपको मिल जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर. एंड देयर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं होगा तो प्लांट के अंदर एक सिम्टम आएगा जिसको बोलते हैं हम क्लोरोसिस. पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे और हमारी बॉडी में तो एटीपी बनेगा ही नहीं. तो कहाँ मिलता है? What are the cytochrome complexes? बेटा वही बता रही हूँ ना, मैं समझा ही वही रही हूँ मैं इतनी देर से. आप अब सुन तो रहे थे मुझे कि नहीं सुन रहे थे? I was listening, but what? समझ में नहीं आया. Please shift. ये बता दूं इसको एक बार. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, they are the protein plus metal ion found in chloroplasts and mitochondria, needed during ATP synthesis. ये बार बार आएगा वर्ड. एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फर्स्ट जो लाइट फेज होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें एटीपी बनाया जाता है. तो उधर भी एटीपी सिंथेसिस में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी बनता ही बनता है. सो दोनों ही जगह पे ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है. दे प्ले important role in electron transport chain. ये भी हम एक अगले चैप्टर में, एक आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन। ये एटीपी बनाने का एक तरीका होता है। ये पीछे का कर लो पहले। हम क्लास किस टाइम खत्म होएगी? मेरी इंग्लिश की ट्यूशन है। कौन कौन बोल रहे हैं? वो स्पीकिंग? मैं था पूरा। पूरा बेटा 6 बजे खत्म होगी क्लास। तो ठीक है। आप अपने सर से बोल के ना 15 मिनट आगे करा लो क्लास, ओके मैम। क्योंकि ये ऐसे छूट जाएगा डेली आपका फिर। डन दिस पेज? No, ma'am. 1 minute. Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay, so these are few of the inorganic components. Let us see the next thing, water. बस हमें इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है इस चैप्टर में। The chapter is basically biomolecules, which is the organic components. पर पानी एक वाटर भी आपकी बुक में एक दिया हुआ है, तो लेट मी टॉक अबाउट वाटर आल्सो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ, यू नो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स constitute of around 70% water. अराउंड है ये एवरेज। जैसे कि कुछ अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं तो दैट इज 99% वाटर। वाटरमेलन is 99% water only. Human cell has around 65 to 70% water. You know हमारी बॉडी में हर जगह पानी ही पानी है। इनफैक्ट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इज अ वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट। तो क्या करता है, फंक्शंस क्या है पानी के, देखें हमारी बॉडी में। It is a solvent in all living organisms, cells. एंजाइम्स, हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी हाइड्रोलेजेस कहलाते हैं। एंजाइम्स वर्क ओनली when substrate is dissolved. Substrate means जिस पे एक्ट किया जाता है। Substrate is dissolved in water. And that is why emulsification happens for fat. Not only emulsification, it is basically hydrolysis बोला जाता है इनको। हर एंजाइम को हम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। And the process of digestion is also called hydrolysis. What is hydrolyzing enzyme? Process of digestion, इसका दूसरा नाम ही है हाइड्रोलिसिस। इसमें देखो मैंने 2 वर्ड लिखे, हाइड्रो और लाइसिस। हाइड्रो मीन्स पानी और लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। Wherever in biology this word comes, lysis, this means to break down. तो पानी के प्रेजेंस में ही कोई भी मॉलिक्यूल टूटेगा, उसके बॉन्ड्स टूटेंगे। ऐसे वाले प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं और हाइड्रोलिसिस भी उसका दूसरा नाम है। Can I shift to the next page? Please wait, ma'am. Before we should produce in this electron transport chain, or would we do it in another chapter? I will do it in photosynthesis and respiration. 2 चैप्टर में करेंगे, दोनों में आएगी सेम चीज। दैट इज ए प्लांट फिजियोलॉजी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अभी ऐसे मान लो आप कि जब भी एटीपी बनाना होता है तो क्या होता है, एनर्जी को
इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल लेता है और दूसरे को दे देता है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और दूसरे को देता है। दूसरा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और दूसरे को देता है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में मॉलिक्यूल साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और आगे आगे की तरफ भेज देते हैं। तो दैट इज व्हाट बिकम्स अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उस प्रोसेस में बनता है एटीपी। तो ये डिटेलिंग हम करेंगे अगले कुछ चैप्टर्स में। बट इन द मीन टाइम बस आप ये समझ लो कि कुछ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो बने होते हैं मेटल आयंस के, जिसमें कॉपर और आयरन बेसिक कंपोनेंट है। डन। ये वाटर वाला टॉपिक खत्म करते हैं आज। Ma'am, in human cell it is present in cytoplasm, water. वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप उसको सेल का साइटोप्लाज्म कहो। साइटोप्लाज्म इज जेली। जेली मींस वाटर, वो जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज वाटर। एवरीवेयर वी हैव वाटर। इनफैक्ट किसी भी सेल के अंदर 60 to 70% पानी होना ही चाहिए, और अगर इसमें से 10% भी कम हो जाए यू विल डाई इमीडिएटली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जब भी कभी डायरिया हो जाता है और आपके इंटेस्टाइन से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, सो इट इज मैंडेटरी दैट यू आर गिवन ORS, oral rehydration solution. Otherwise you will not die because of diarrhea, you will die because of dehydration. तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है और पीते रहना चाहिए आपको सभी को। ओके, नेक्स्ट क्या करता है पानी हमारी बॉडी में? इट हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब देखो क्या होगा। थर्मा मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेट करना मीन्स कंट्रोल करना। तो पानी जो है वो टेम्परेचर, हीट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट हीट evenly in the body. You know, water can carry heat along with blood. तो ऐसा तो नहीं होता आपकी बॉडी, अगर आप हाथ सेक रहे हो आग में या हीटर पे, तो सिर्फ आपके हाथ ही गर्म होंगे, आपकी पूरी बॉडी थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, बिकॉज हीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज बिकॉज की वाटर हैज हीट होल्डिंग कैपेसिटी। इसीलिए जब आपका मटके से पानी इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, द वाटर टेक्स अवे द हीट एंड देयरफॉर द वाटर कूल्स डाउन इन द पॉट। और सिमिलरली जब हमें पसीना आता है तो पसीना जब इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ लेटेंट हीट लेकर जाता है। तो बिकॉज वाटर हैज हीट होल्डिंग कैपेसिटी, सो इट कैन कूल अस आल्सो व्हेन देयर इज स्वेटिंग। Water is cooled down in a pot. Body is cooled down during perspiration. Because water when evaporates takes away heat. So that is the thermoregulation. Next, it helps in neutralizing acids and bases. In fact, it acts as a buffer. बफर का मतलब होता है, बफरिंग मीन्स कि अगर कुछ एसिड बहुत ज्यादा बन रहे हैं बॉडी में तो वाटर विल न्यूट्रलाइज इट एंड लेट द पीएच बी 7, और अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है तो उसको फिर से न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल पीएच में ले आना। दैट इज व्हाट इज बफरिंग। तो हमारे ब्लड में भी, हमारी बॉडी में भी, एवरीवेयर इन द बॉडी दिस विल बी हेल्पिंग इन बफरिंग।
then it helps in excretion. You know, हमारे यूरिया को एक्सक्रीट होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. यूरिया is not excreted as solid waste, but in dissolved form as urine. तो यूरिन इज नथिंग बट यूरिया इन वाटर. तो वाटर के बिना हमारा यूरिया भी एक्सक्रीट नहीं हो सकता. देन it is needed for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में कहाँ चाहिए होता है हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देखेंगे. बट जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो पानी से ही निकलता है. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस देखो, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है पानी का और तब रिलीज होता है ऑक्सीजन. तो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन आर यूज्ड अप एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. तो फोटोसिंथेसिस में ऐसे होता है. पानी को इनफैक्ट जैसे सनलाइट एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे गिरती है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज वाटर इज आल्सो लाइज्ड. और उसमें से हाइड्रोजन कंपोनेंट को यूज कर लिया जाता है और जबकि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. तो लाइट के प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में. और क्योंकि पानी का ब्रेकडाउन होता है तो इसलिए उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. एक लास्ट पॉइंट और लिख दें इसमें. मैं पहले लिख देती हूँ फिर आप इस पेज पे आ जाना. Water helps in maintaining a constant environment in body. Constant environment का मतलब है we call it as homeostasis. Homeostasis. देखो, होमियो का मतलब होता है सेम. This means same. Static means to stand. तो एक इंटरनल बैलेंस इसका दूसरा नाम है अगर मैं कहूं तो दिस इज इंटरनल बैलेंस. तो बॉडी का इंटरनल बैलेंस बनाए रखने के लिए पानी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देता है. कि हमारी किडनीज का फंक्शनिंग कैसे होता है. So this water will be helping in maintaining homeostasis. That is the balance, internal balance. So this was the introduction of the. This was the introduction of the chapter. इनफैक्ट कल हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, अमीनो एसिड. After this and before that one. And between these two there was a... This? Yes, ma'am. You want this? Okay. Yes, ma'am. मैम बस और तो नहीं कराओगे, फिर मैं लीव हो जाता हूँ. हाँ आप जाओ. हाँ बेटा आप जाओ. Ma'am, could you please explain the second point again? Second, like it helps in neutralizing acids. ये Yes, ma'am. एसिड्स देखो, अगर पीएच बहुत ज्यादा लो हो रहा है तो पानी जो है उसमें वाटर इज H+
एंड OH माइनस। ठीक है, अगर किसी भी जगह पे किसी भी एरिया में अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो एसिडिक हो जाता है, और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो अल्कलाइन हो जाता है। तो पानी फटाफट ब्रेक डाउन होके अगर एसिड है तो OH ऐड कर देगा, और अगर बेस है तो H+ ऐड कर देगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बफर। तो इट विल बी न्यूट्रलाइजिंग इफ देयर इज एसिडिक और बेसिक कंडीशंस इन द बॉडी। तो इसको हम बफरिंग बोलते हैं। हो गया बच्चों? How are hydrogen ions used in photosynthesis? हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। दिस हाइड्रोजन आयन इज डोनेटेड टू NADH2, एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। तो वो बनाने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इस हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। That name was for how many molecules? There was one molecule, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH2, फास्फोरस भी था बीच में। और ये एक ऐसा, ये इसको बोलते हैं रिडॉक्स मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहता है क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और जैसी हाइड्रोजन इसको मिल जाता है ये रिड्यूस हो जाता है, और फिर ये अपने इस हाइड्रोजन को इजीली डोनेट भी कर सकता है। सो ये एक ऐसे वाला, ये विटामिन बी से बना हुआ एक कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी में, जो कि एक रिडॉक्स मॉलिक्यूल कहलाता है, FADH2 NADH2। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटीपी बनाने में। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में। तो फॉर टुडे दिस इज एनफ। हो गया बच्चों आगे तक का? Ma'am, please The show the next last. page. Yes, ये ma'am. वाला Can we leave now? हाँ, यस, अदर्स कैन लीव।